الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی، اس امت کو معاف نہ کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ نہ دیتے۔ رمضان کا مہینہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی رحمت ہم سب پر نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم میں سے کون ہے، نہر بہتی ہے، نہر سے پانی جتنا جس کے پاس برتن ہوتا ہے وہ اتنا پانی اس میں سے نکالتا ہے۔ کسی کے پاس ڈونگا ہوتا ہے وہ ڈونگے کے برابر برتن اس میں پانی نکالے گا، کسی کے پاس لوٹا ہے، کسی کے پاس بڑا پتیلا ہے، یعنی جس کے پاس جتنا بڑا برتن ہوگا وہ اس سے اتنا ہی فیضیاب ہوگا، اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں کے برتن کتنے بڑے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے برتنوں میں گنجائش کتنی ہے۔ جتنی گنجائش ہوگی اتنا ہم فائدہ اٹھا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں بتانا شروع کیا تو آپ نے کہا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے استغفار کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا ہے۔ یعنی جب پورا مہینہ گزر گیا تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی کوششیں کی، میں نے رات کو قیام بھی کیا، میں نے روزہ رکھا، دن میں بھوکا رہا، لہٰذا میں آپ کو اپنے ان اعمال کا حوالہ دیتا ہوں، آپ میری بخشش فرما دیجئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کچھ کرنے کے بعد اب جب شب قدر اس کو ملی ہے تو اس میں یہ کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ اپنی محبوب چیز یعنی آپ کو معاف کرنا محبوب ہے، ہم آپ سے آپ کی محبوب چیز مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معافی دے دیجئے، ہم سے غلطیاں۔ اصل میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنی گردن جھکا دینا، اپنے گناہوں کا اور اپنی بدماشیوں کا اعتراف کرنا، یہ ہے کامیابی۔ اور جو اس کے اوپر مصر رہے، جو اس کے اوپر ڈٹ جائے کہ نہیں میں تو یہ کام بھی کرتا ہوں، یہ کام بھی کرتا ہوں، تو اس میں میرے دوستوں پھر خرابی ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں برکت سے کیا مراد ہے؟ برکت سے مراد ہے کہ بظاہر چیز کم نظر آئے لیکن اس کا نتائج بہت بڑے ہوں۔ کبھی کبھی سالن ہم کم بناتے ہیں گھر میں لیکن بعد میں ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ بھئی الحمدللہ آج برکت ہو گئی۔ وجہ کیا تھی کہ بظاہر کم نظر آ رہا تھا لیکن ہمیں لگ نہیں رہا تھا اتنے لوگ کھانا کھا لیں گے، مگر اتنے لوگوں نے کھانا کھا لیا سیراب ہو کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برکت ہوئی ہے۔ برکت زیادہ کم نظر آنا لیکن فوائد اس کے زیادہ ہونا۔ اسی طریقے سے اب یہ رمضان برکتوں والا مہینہ کیسے ہے؟ آپ کو پورا سال تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد کی کچھ نوافل کی اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے ان کو رات کو اس وقت کا ثواب جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کے لیے کوئی رات کو اٹھا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب اس کو دیتے ہیں۔ میرے دوستو رمضان میں اگر کوئی صبح 10 بجے 2 رکعت نماز پڑھے گا، دوپہر کو 2 رکعت نماز پڑھے گا ظہر کے بعد نوافل کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب دیں گے جو تہجد میں اٹھنے والے کو تہجد میں دیتے ہیں۔ یہ ہے برکت۔ اب ان برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ میں بارہا جی عرض کرتا ہوں کہ ہم کوئی کتنا ہی سمجھا لے، ہمیں کوئی سمجھا دے ناصح نصیحت کرنے والا، لیکن اگر ہمیں نہیں سمجھنا ہوگا ہم نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باتیں سن کے کرکٹ میچ دیکھنا چھوڑ دیا ہو، کتنے لوگ ہیں، ہم اپنا خود جائزہ لیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کھیلنا چھوڑ دیا ہو۔ تو یہ
ये लम्हात कीमती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, एक आयत जो हम पढ़ते हैं अक्सर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये ऐसा काम है जो पिछली उम्मतों से भी करवाया है हमने, यानी हर उम्मत को ये काम दिया गया है कि तुम्हें अल्लाह के लिए सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना है। और अल्लाह की शफकत फिर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सहरी करने वाले पसंद हैं। यानी अल्लाह ताला भूखा हमें अगरचे रखवाते हैं, लेकिन अल्लाह ये भी चाहते हैं कि भाई ये सहरी भी बहुत अच्छे तरीके से कर लें। एक बुजुर्ग ने अपना वाक़े में लिखा है कि एक रात उन्होंने कहा मैं सहरी के लिए नहीं उठूंगा, मुझे न उठाना। तो उनकी बेटी ने कहा कि सहरी कीजिए, चाहे एक खजूर खाएं या कुछ घूंट पानी के पिए, सहरी जरूर करें। तो उनको फौरन ख्याल आया कि बिल्कुल ये तो मुझे करनी चाहिए। तो कभी कभी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो दिल पर असर रखती हैं। हमें ये महीना कैसे गुजारना है, ये गुजर गया, अय्याम मादूदात, बहुत थोड़े से दिन हैं। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि भूखा प्यासा रखूंगा, मुश्किल काम है, बहुत थोड़े से दिन हैं। जब बहुत थोड़े से दिन हैं तो इसकी कदरदानी कर लीजिए। यानी तुम्हें भूखा प्यासा रखना मतलूब नहीं है, मैं तुम्हें तकवे से देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गुनाहों से बचा हुआ देखना चाहता हूँ। लअल्लकुम तत्तकून में इस बात की तरफ इशारा है कि क्यों कर रहे हैं अल्लाह को सुबह से शाम तक भूखा। और सारी तरतीब अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस माह मुबारक में बदल दी। आमतौर पे लोग नाश्ता करते हैं सुबह 7-8 बजे 9 बजे करते हैं, लेकिन अल्लाह ने आधी रात को उठवाया। आधी रात को उठवा के अल्लाह तबारक व तआला ने खाना खिलाया, जिस वक्त खाना खाते नहीं है आमतौर पर, भूख भी नहीं लगती, लेकिन तरतीब बदल दी। खाना अगर शाम को खाना हो तो फिर रात को खाने का कोई टाइम मुकर्रर होता कि भाई रात को खा लें या 4 बजे खा लें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐन मगरिब के वक्त खाना का इंतजाम फरमाया कि अब सहरी, अब अफ्तारी करो। और अफ्तारी के साथ ही बिल्कुल साथ में नमाज को लगा दिया। हम सफर में जाते हैं तो 4 रकत नमाज फर्ज की जगह 2 रकत पढ़ते हैं। सुन्नत और नवाफिल जो है वो इख्तियारी हैं बाज़ उलमा के नजदीक, यानी सुन्नत और नफिल ना पढ़े, सिर्फ 4 की जगह 2 पढ़ ली, क्योंकि मुशक्कत है। तो पूरा दिन मुशक्कत करवा के होना ये चाहिए था कि ईशा की नमाज में तखफीफ कर देते कि अब वितर ना पढ़ो या सिर्फ वितर पढ़ लो या फर्ज को कम करो, लेकिन नहीं, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस इबादत को पसंद फरमाया कि लोग रात को क़याम करें। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो ईमान के साथ और नेकी की शौक के साथ रात को खड़ा होगा, अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे। देखें इनाम कितना बड़ा मिल रहा है। हम सब जानते हैं पूरे 11 महीने हम क्या 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 करते हैं, अल्लाह ताला की कितनी बगावत करते हैं अहकामात की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ये बता रहे हैं कि जो रात को खड़ा हुआ, अल्लाह ताला उसके तमाम पुराने पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे। तो अब गुनाहों को माफ करवाना है। 11 महीने जो करते रहे, अल्लाह कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये तुम्हारा महीना था, लेकिन ये महीना मेरा महीना है, इसमें इंसान बन जाओ, इसमें मुझे राजी करने की फिक्र कर लो बस। तो 11 महीनों में मेरे दोस्तों हम जो करते हैं, अब इस एक महीने में हम अच्छे मुसलमान बन जाएं, मोमिन बन जाएं और उस तरीके से जिंदगी गुजारें जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी गुजारता हुआ देखना चाहते हैं। एक मजूसी के वाक़े में लिखा है नुज़हतुल मजालिस में, उसमें लिखा है कि एक मजूसी था, उसका अकलौता बेटा था। तो उसने रमजान आने पर अपने बेटे से ये कहा कि देखो बेटा, ये मुसलमानों का महीना है, ये बरकतों वाला महीना है, मुसलमान इस महीने में दिन में कुछ खाते पीते नहीं है, लिहाजा हमारे चारों तरफ मुसलमान रहते हैं तो उनके एहतराम में कुछ खाना पीना नहीं। एक दिन बाप को पता चल, और ये बार बार ये तलकीन करता रहता था अपने बेटे को। एक दिन इसको पता चला कि इसका बेटे ने कुछ खाया है बाहर लोगों को दिखा के। ये घर में आया और इसने बेटे के ऊपर सख्ती की, इसने उसको मारा भी और फिर नाराज हुआ कि तुमसे मैंने कहा था कि इस महीने का तकद्दुस करना है, एहतराम करना है, तुमने क्यों मुसलमानों के सामने खाया? उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि तुम खा रहे हो और वो रोजे से हैं। कुछ अरसे के बाद इस मजूसी का इंतकाल हो गया। तो एक इलाके में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ख्वाब में देखा तो जन्नत की नेमतों से ये फैजाब हो रहा है।
تو उससे पूछा कि तुम तो मजूसी थे, लेकिन तुम्हें मैं जन्नत में क्यों देख रहा हूं? तो उसने कहा कि मैंने एक दिन अपने बेटे के ऊपर बड़ी सख्ती की थी कि उसने रोजे में मुसलमानों का एहतराम नहीं किया, रोजों का एहतराम नहीं किया, लिहाजा मैंने उस पर सख्ती की। इस सख्ती की बरकत से अल्लाह ने मौत से चंद महीनों पहले या चंद दिनों पहले मुझे अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। मैं छुप कर मुसलमान हुआ, छुप के इबादत किया करता था, लिहाजा अल्लाह ने उस एक वाक़े की वजह से मुझे जन्नत में दाखिला मेरा लिख दिया और मैं यहाँ की नेमतों से फायदा उठा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये इस महीने की कदरदानी है। अब इस महीने को गुजारें कैसे हम सब जानते हैं, लेकिन बात वो पानी अगर कतरा कतरा पत्थर पे पड़ता रहे तो गढ़ा बन जाता है। अब हम इसके ऊपर अमल कैसे करें? अमल ऐसे करें कि अपने औकात को, अभी भी अय्याम मादूदात को जहन में रखिए, चंद दिन हैं। अभी हम ये कह रहे होंगे अरे रमजान आया था चला गया, पता भी नहीं चला। अब इतने मुख्तसर से दिन हैं, इतने मुख्तसर से दिन अल्लाह को दे दें। अल्लाह को कैसे दे दें कि मस्जिद में कुछ देर बैठने का अपने आप को पाबंद बनाएं, अल्लाह से मांगने का मिजाज बनाएं, अल्लाह के आगे रोने का मिजाज बनाएं कि या अल्लाह बड़ी मैंने गफलतें की हैं, आप मुझसे नाराज नहीं हो, बस अल्लाह को राजी करने की फिक्र में लगे रहें। और घर की खवातीन को बताइए कि मुझे सुबह में तमाम तर एक फहरिस्त दे दिया करें ताकि मैं जब शाम को आऊं तो आपके लिए सारी चीजें लेके आ जाऊं, क्योंकि आने के बाद फिर मेरे कुछ मामूलात हैं, कुरान हकीम वगैरह पढ़ना है। होता क्या है कि अभी हम घर में आए हैं और ये हर घर की कहानी है कम और बेश। हम अभी घर में आए हैं, कुरान हकीम खोला और वहां से आवाज आई सुनिए, आज तेल तो है ही नहीं, तो उसने कहा अभी लेके आता हूं, आप एंड टाइम पे लेके आएंगे, फिर मैं क्या बनाऊंगी। यानी शैतान इस जरिए से भी बहका रहा है कि अब इन्होंने किताब बंद की, कुरान हकीम बंद किया, अब ये तेल जो वो कैफियत थी वो चली गई। अब वापस आके और फिर दोबारा जब आएंगे उसके बाद फिर कुछ काम में भी लगना पड़ेगा घर में, कि सारा दिन मैं ही काम करती रहती हूँ, मुझे आपने बेवकूफ समझा हुआ है, आप भी तो थोड़ा हाथ बटाया करें। तो मर्द क्या करते हैं बेचारे आजकल, वो चाट बना रहे हैं, वो इन कामों में लग गए। जो वक्त दुआ का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तार के वक्त मोमिन की दुआ कबूल होती है। जो दुआ मांगने का वक्त था वो किचन में गुजर रहा है और भाग दौड़ हो रही है कि बस पता नहीं, जैसे ये ऐसा लाजमी एक जुज है भाई, अफ्तारी में खजूर भी हो सकता है, एक दूध का गिलास या शरबत जो भी अल्लाह ने मयस्सर दिया वो भी हो सकता है, जरूरी है पूरा दस्तरखान सजे और उसके लिए शाम से तगोदौ करते रहें यहां तक कि मगरिब हो जाए। और फिर जब इतनी ज्यादा तगोदौ होगी और इतना फिर खुराक होगी तो क्या फिर नमाजों में मजा आएगा। तो बुजुर्गों के वाकयात भी पढ़ने चाहिए कि उनका क्या तौर तरीका था, किस तरह खाते पीते थे। अक्सर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं इल्ला माशाअल्लाह कि मैं तो बस एक खजूर छोटी सी खाता हूं, उसके बाद बस पानी पीता हूं और नमाज पढ़ता हूं। तो फिर इतना एहतमाम क्यों है जब एक खजूर खाता हूं तो ये दिल के बहलावे हैं, ये दूसरे को अपना तकवा जाहिर करना है कि देखो मैं कितना मुत्तकी हूं कि मैं एक खजूर खाता हूं। तो इस महीने को किस तरह मुज़य्यन करें, ये अब हम खुद अपने तय ये फैसला कर सकते हैं। ये वक्त जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएगा। जिसने ईमान के साथ और एहतिसाब यानी नेकियों की ख्वाहिश के साथ रोजा रखा, बाज उलमा ने लिखा है कि अगर चांद नजर आने के बाद उसने ये नियत की कि या अल्लाह मैं सारा महीना तरावी पढ़ूंगा, तो ये उसकी नियत काफी है और रोजाना तरावी में दोबारा से नियत ना करे। अगर किसी ने ये नियत की कि अल्लाह मैं सारा साल रोजा रखूं, सारा महीना रोजा रखूंगा, तो अब अफ्तार शहरी में भी नियत करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस उलझन में रहते हैं कि अरे आज नियत कर दी तो भूल गए। भाई जब शहरी कर ली तो समझे कि नियत हो गई, और नियत दिल के इरादे का नाम है, बस नियत कर ली हो गई नियत। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम और फजल है कि हमें अल्लाह ने महीने, अच्छा जो मेहमान होता है उसके लिए उतनी ही तैयारी की जाती है कि मेहमान आ रहा है, तैयारी अगर आपका कोई बहुत ही खास है तो 15 दिन पहले तैयारी, 5 दिन पहले, 10 दिन, जैसे जैसे मेहमान खास होगा। घर में एक मेहमान आता है दुल्हन, पहले भी मैंने ये मिसाल दी थी, तो उसके लिए तैयारियां करता है आदमी, कोई महीना पहले, कोई 1.5 महीना पहले। ये ऐसा महीना है, इतना खूबसूरत महीना है, इतना अच्छा महीना है कि इसकी कदरदानी वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने हलावत दी है, हलावत ईमानी दी है। और हलावत ईमानी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन होगा।
जिनको ये नसीब, ये दौलत मिली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले कहते थे कि ए अल्लाह रजब और शाबान में बरकत दीजिए और रमजान में मुझे आफियत के साथ दाखिल फरमाइए। और फिर ये दुआ करते थे कि अल्लाह रमजान को मेरे लिए और मुझे रमजान के लिए सलामत रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमजान व सल्लिम रमजान अली, मेरे लिए इसको सलामत रखिए। कोई तो वजह होगी, अब तैयारी कर रहे हैं 2 महीने पहले से रमजान की, कोई तो वजह होगी, कितना खास मेहमान है। और फिर आखिरी शब शाबान के आखिरी दिनों में फिर सहाबा को जमा फरमाते हैं और फिर ये कहते हैं, इस महीने की 7 चीजें गिनवाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या तुम्हें करने हैं। तो वो जानते थे, वो बता रहे हैं हमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग से बचाने के लिए आए थे हमें। और हम एक रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नुम से निकाल के जन्नत के रास्ते पे लेके जाता हूं और तुम मुझे मेरा हाथ छुड़ा छुड़ा के जहन्नुम की तरफ जा रहे हो। कितना दर्द होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने ये सारी चीजें बताई जो मैंने अभी जिक्र किया, बरकत का, मगफिरत का, दुआ मांगने का, गिड़गिड़ाने का, रोने का, अल्लाह से आखिरी दिनों में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, इसकी रट लगाने का, ये सब आखिर जब आपने बता दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता आप जोश में आ रहे हैं। सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और बदनसीब है वो शख्स जिसको इस महीने ये महीना मिला और वो अल्लाह ताला को राजी न कर सका, वो महरूम रहा, बदनसीब है वो शख्स। मेरे दोस्तों, देखना ये चाहिए कि हम बदनसीबों में तो शुमार नहीं हो रहे, खुदा ना खास्ता कहीं हमें वो कोड़ा हमारे ऊपर तो नहीं आ रहा जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में वईद फरमाई है। किस तरह से हमारे शब रोज गुजर रहे हैं। इस रमजान में नियत करें कि ए अल्लाह, मैं सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। नियत तो कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं, मांग तो सकते हैं अल्लाह से, और हमें पता है हम दिल के कैसे हैं। जो नियत हम कर रहे हैं, हमारी नियत में भी कितनी सच्चाई और सदाकत है, ये भी हमें मालूम है। लेकिन जुबान से कहते तो रहे, आज जुबान से कहेंगे, कल अल्लाह ताला दिल में भी उतार देंगे इंशाअल्लाह। और जो जुबान से ही ना कहे तो अल्लाह दिल में क्या उतारेंगे फिर। तो इस रमजान के महीने को मेरे दोस्तों, अपने लिए ये सेल लगी हुई है, ये सवाब की सेल लगी है कि थोड़ा करो ज्यादा ले लो। और आपने सुना होगा, अगर कोई ये कहे कि आप 1 लाख रुपए दो, आपको 1 महीने के बाद 7 लाख रुपए में वापस करूंगा, कितना, और 7 से भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो कितना प्यारा सौदा लगता है ये। हर आदमी चाहेगा कि मैं इस सेल में, इस कारोबार में शरीक हो जाऊं। अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम मुझे 1-2 में 70 दूंगा और 70 से भी ज्यादा दूंगा। बाद उलमा ने लिखा है कि ये तकसीर के लिए है, तहदीद के लिए नहीं है। जैसे ये, यानी ये उस मुहावरे को है कि जैसे हम लोग आमतौर पे कहते हैं 5 मिनट में आ रहा हूं। जैसे कि आप 50 दफा तुम्हें समझाए तो 50 दफा तो नहीं समझाते, समझाते 2-4 दफा, मुहावरा ही है। वैसे कि पता नहीं कितनी अल्लाह लातादाद देंगे उनके खजानों में, क्या कुछ नहीं है, बस हम लेने वाले बन जाएं। हम आज से ये कोशिश करें। हम अमूमन आजकल ये देख रहे हैं कि हर जगह मनफी रुझान ज्यादा है। ये हो गया, पाइपलाइन फट गई, सड़क टूट गई, चोरी हो गई, फला चीज छीन ली गई, जैसे हम कोई पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, कितनी तबाहियों में हम रह रहे हैं। फिरकावारियत को हवा, यानी थोड़ी देर आप अगर सोशल मीडिया पे बैठ जाएं तो जहन जो है वो सर में दर्द हो जाता है ये सोच के कि क्या तबाही हो रही है। तो अच्छी चीजें भी होनी चाहिए। अच्छा, ये भी ख्याल करें, माशाल्लाह रौनक भी है, माशाल्लाह लोग बाहर चहल पहल भी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सबको उसकी हैसियत के मुताबिक चीजें भी दी हैं। ये भी तो बातें होनी चाहिए। हमारी ईमानी कैफियत मेरे दोस्तों इतनी गई गुजरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ जितने बैठे हैं, जिसका रोजा है, आप ईमानदारी से बताइए, अगर कोई आपको 1 लाख रुपए दे असर के वक्त और ये कि अपना रोजा तोड़ दो, कोई रोजा तोड़ेगा? कोई रोजा नहीं खोलेगा। कितना ही गिरे से गिरा मुसलमान आमाल के हिसाब से हो, गिरे से गिरा तो मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, अल्लाह ही जानते हैं किसकी क्या अहमियत और कदर है। तो कोई अपना रोजा नहीं खराब करेगा पैसों के लिए। तो हम इतने गए गुजरे भी नहीं है मेरे दोस्तों। अपनी हैसियत पहचानिए। कुरान हकीम का महीना है, मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। जब अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान को शुरू किया है तो पहले एक लफ्ज लिखा है अलिफ लाम मीम। इसके मायने किसी को नहीं मालूम।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعضوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتے ہیں اس کی مراد۔ عربی میں جو چیز میرے پاس ہے اسے کہتے ہیں ہاذا، ہاذا مندیل یہ ٹشو ہے، ہاذا جوال یہ موبائل ہے، اور ذاکا کہتے ہیں وہ جو دور ہے لیکن میری دسترس میں ہے۔ جیسے کوئی اگر مجھے کہے وہاں سے بٹن کھول دیجئے تو میں یہاں سے نہیں کھول سکتا، مجھے جانا پڑے گا، یہ میری دسترس میں ہے۔ اور ذالی کا کہتے ہیں اسے جو بہت دور ہے، دسترس میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی جاتا ہو جیسے چاند دور ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی ارادہ کرے اور 3 دن کے بعد وہاں پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، شروع میں کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات دیباچے میں ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ کتابوں میں، اس میں آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کی تصنیف اس لکھائی سے کسی کو اعتراض ہو تو وہ رابطہ کرے ناشر سے، وہ لکھنے والے سے رابطہ کرے۔ اللہ نے شروع میں پہلی لائن میں لکھ دیا کہ اس میں شک نہیں کرنا، رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شک نہیں کرنا، شک کرو گے تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ذالکل کتاب لا ریب فیہ، جیسے میں یہ کہوں کہ یہ صاحب عبداللہ صاحب ہیں، یہ بہت مشکل سے ملتے ہیں لیکن آج یہ ہمارے سامنے آ گئے، آج انہوں کو میں نے پکڑ لیا۔ دیکھیں کتنے یہ عظیم انسان ہیں، اور تعریف کریں جس طرح تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لفظ یہ استعمال کرنا چاہیے تھا، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہاذا الف لام میم ذالکا کے بجائے ہاذی کتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں، لیکن انہوں نے ذالکا استعمال فرمایا، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس آنے والی نہیں تھی، وہ کلام ہے۔ تم اپنی حیثیت پہچانو کہ میں نے اس کلام کو، اپنے کلام کو جس کے بارے میں میں نے پہاڑوں سے کہا کہ میں تم پہ اپنا کلام نازل کرنا چاہتا ہوں، آسمانوں سے کہا، میں نے زمین سے کہا لیکن سب نے منع کر دیا، لیکن فحملہ الانسان، انسان نے اس کو اٹھایا۔ تم وہ ہو، تم اپنی حیثیت پہچانو کہ اپنا کلام میں نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کے ہو کے رہو، اللہ کے بن جاؤ، بس اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا میرے دوستو، یہ رمضان کا پیغام ہے۔ تقوی کے معنی بھی یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کا فہم عطا فرمائے، اور ان کے جو بھی اسلام کے یہ ستون ہیں، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہماری عمارت ہل جائے گی، تو اس عمارت کو ہلنے نہ دیجیے۔ اس کے جو فرائض ہیں اس کے لیے منوعن، اس کے لیے دل و جان سے دل لگا کے اس میں محنت کریں، کوشش کریں۔ جب یہ عمارت مضبوط ہوگی میرے دوستو، پھر اس عمارت کی مضبوطی میں ہم اگر رہیں گے تو ہمارا ٹھکانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور اگر یہی نہیں ہوگا میرے دوستو، عمارت ہلتی رہے گی، روزے بھی ایسے ہیں، نمازیں بھی ایسی ہیں، جو فرائض ہیں ہمارے، اگر اس میں کوتاہی ہوئی، یہ عمارت ہل گئی میرے دوستو، تو یہ نہیں ہے کہ آخرت خراب ہوگی، دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں ان کے پاس گاڑی بھی ہے، ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے پاس، اس کے اندر جھانک کے دیکھیے کہ ان کے دل کتنے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنے جو ان کے منحرف بندے ہیں ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ کو نکال دیتے ہیں، اور جو اللہ کے ہوتے رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرماتے ہیں، سکون ہوتا ہے۔ زندگی ہے، اونچ نیچ اتار چڑھاؤ سب آئے گا، گرم سرد سب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرما دیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو سکینہ اور سکون والی زندگی عطا فرمائے میرے دوستو، اللہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔